للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقوا أنفسكم وأهليكم نارا. یہ جمعیت علماء کی کمیٹی جو ہے خیر آباد اقراری کیلنڈر پر جو مشتمل ہے، یہ اس کی طرف سے ہر مہینے اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہر محلے میں کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے، مسلمانوں کے اندر یہ احساس جگایا جائے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ خود بھی اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کی ہدایت، ان کی سعادت، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، معاملہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخری امت بنایا۔ پہلے دور میں انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔ جب سماج میں، سوسائٹی میں برائیاں پھیل جاتی تھی، شرک ہونے لگتا تھا، بدماشی، بدفحاشی اور بدکاری، اسی طریقے سے بے حیائی و بے شرمی کے جب کام ہوتے تھے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی عام ہو جاتی تھی، اور اللہ کا بندہ اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا تھا اور شیطان کے جال میں گرفتار ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف یہی کام تھا۔ جہاں برائی پھیلی، جہاں شرک عام ہوا، جہاں کفر عام ہوا، وہاں اللہ نے اس دور کے اعتبار سے نبی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور آپ پر نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن جو کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے پہلے نبیوں کا، وہ کام باقی رکھا گیا، قیامت تک وہ چلے گا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کی امت کو، یعنی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اسی میں ہماری بھلائی بھی رکھی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ ہر دور، ہر زمانے میں ایسے ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یہ خیر کا لفظ بہت عام ہے،
اسلام بھی مراد ہے اس سے لفظ لیے کہ اللہ نے تمام خیریت اسلام میں رکھی ہے۔ سب سے پیارا اور سب سے محبوب طریقہ عمل اور دین اللہ نے اسلام کو بنایا ہے، تو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ خیر کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلائیں، برائی سے ان کو منع کریں، اور اگر یہ جماعت نہیں ہوگی تو پھر سب کی سب پکڑے جائیں گے۔ لیکن حکم بڑا زور ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا وَلْتَكُنْ، ضرور ہونا چاہیے ہر زمانے میں یہ ذمہ داری کیا ہے، یأمرون بالمعروف، یعنی خیر یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے، حج کرنے کے لیے کہیں گے، زکات فرض ہے تو زکات دینے کے لیے کہیں گے، اسی طریقے سے سچ بولنے کے لیے کہیں گے، فتنہ اور فساد سے منع کریں گے، برائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، جوا بازی سے، بے ایمانی سے منع کریں گے، اچھا جو کریں گے اس کے اوپر حوصلہ بڑھائیں گے، برائی سے روکنے کے لیے جب نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، یہ کام ہوگا۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، اور ایسا ہی کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام دیا۔ اب اگر اس زمانے میں علماء یہ کام بند کر دیں گے تو پھر اللہ کا عام عذاب آ سکتا ہے۔ جب علماء کی جماعت ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے، علماء کی جماعت ہے، اور یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے۔ وارث کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جائیداد بانٹیں گے۔ انبیاء درہم اور دینار، سونا چاندی چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کا وراثت اور ان کی میراث اور ان کا ترکہ جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے، حلال اور حرام کی تعلیم ہے، قرآن اور سنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ علماء کو ملا ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہر آدمی جو آج پریشان حال ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کون آدمی ہے جو حالات سے کبیرہ خاطر نہیں، پریشان نہیں، دل برداشت نہیں، اور سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی برائی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں شراب نوشی عام ہو رہی ہے، ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان میں ابتداء پھیل رہا ہے، بیٹوں سے شادی کر رہی ہیں، نوجوان ہمارا ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے شکایت، بوڑھوں کو اپنے نوجوانوں سے شکایت، نوجوانوں کو اپنے والدین سے شکایت۔ کون سا کام ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا اظہار نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ہمارے درمیان نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ پر ماحول بنایا تھا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، معاشرے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ راع کس کو کہا جاتا ہے؟ چرواہا، جو بھیڑ چراتا ہے۔ کبھی دیکھے ہوں گے سڑک میں بھیڑ جاتی ہے اور بھیڑ سر چکائے ہوئے جدھر اس کا رخ ہو جاتا ہے ادھر بھاگنے لگتی ہے، تو اس کے ساتھ جو گدیڑیا ہوتا ہے ایک لمبی سی
लाठी लिए रहता है और कभी इधर हाँकता है कभी उधर हाँकता है। उसको सीधे रखने के लिए वो हर वक्त इधर से उधर से इधर सब पर निगाह रखता है कि कोई भेड़ इधर से उधर न हो जाए। ऐसे ही माँ बाप को अल्लाह ताला ने अपनी औलाद का निगरान बनाया है, भाई को भाई का निगरान बनाया है, गांव के प्रधान को अपनी आवाम का निगरान बनाया है, उलमा को अपनी कौम का निगरान बनाया है। हर घर का जिम्मेदार अपने घर के बच्चों का, अपने बाल बच्चों के साथ अपने जो माता है उनका निगरान बनाया गया। उन पर निगाह रखे, उनकी गलतियों पर टोके, अच्छाइयों पर हौसला बढ़ाए। ये कुल्लुकुम राइन और फरमाया वकुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। और अगर इसमें जरा भी कोताही हुई, मुझे मौका नहीं मिला, मुझको याद नहीं रहा, मैं क्या करता, तो अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जब जाएगा तो सवाल किया जाएगा कि अपने बेटे की तरबियत की थी कि नहीं की, अपने बेटे को बुराई से रोका था कि नहीं रोका। वो तो तुम्हारा बेटा था, गोद से लेकर के और जवान होने तक तुम्हारी सरपरस्ती में था। छोटे में तुमने उसको अच्छी तालीम दी, अपने साथ उसको रखा और उसको ढंग सिखाया, नमाज का ढंग सिखाया, अल्लाह के अज़ाब से डराया, अल्लाह की अज़मत दिल में पैदा की, कुरान की तालीम दी। क्या क्या किया? अरे अल्लाह, मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, मदरसे में डाल दिए था। आपका लड़का और मौलवी साहब 3 घंटे में पढ़ा के सही कर दिया, 24 घंटे में आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास फुर्सत नहीं है अपने बेटे के लिए। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं और देख करके अफसोस होता है कि अपने औलाद को छोड़ करके चिल्ले में जाते हैं। अरे औलाद को छोड़ करके चिल्ले में चले गए। कौम की फिक्र है और उसकी उम्मत उसकी औलाद है। हमारे मदरसे में एक लड़का है, आए दिन नागा, इधर भागे उधर भागे, उसके वाली से बात क्या बोलता, मैं क्या करूं, मैं तो जमात में चला जाता हूं, ऐसी जमात में मारिए लाभ। ये उससे बड़ा बेवकूफ और अहमक आदमी नहीं है जो अपनी औलाद को बेकाबिल कर करके उसकी तरबियत नहीं कर रहा है, अपने घर को संभाल नहीं रहा है और 40 दिन 4 महीना चला गया। ये जमात वाले की जाकर लगाते हैं, जाने दीजिए अल्लाह देगा। ये तमाम तरीके जो हम इख्तियार कर रहे हैं दूसरों की इस्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप अपने बेटे का पहला जिम्मेदार। इस्लाह मुआशरा इसलिए है हर बाप अपने घर में देखे, अगर वो चिल्ले में नहीं जाएगा उससे मुआवजा नहीं होगा। अगर अपनी औलाद को बना करके जाना है तब तो सवाल ही सवाल, नबियों वाला काम। और औलाद की फिक्र छोड़ करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, इससे काबिल क्या शैतान दिल में बैठाता है अल्लाह देगा। भीख मांगते हैं बच्चे उनके, एक बड़ी सैकड़ों मिसालें हैं यहाँ पर। नाराज भी हो जाएंगे, मैं चाहता हूं मेरी बात तब कैसे इसलिए उनके दिमाग में बैठाया गया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो या कुछ हो जाए, निकल जाओ। मैं इस काम की अहमियत को समझता हूं, यह नबियों वाला काम है, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत करना यह उलमा की जिम्मेदारी है कि आपको याद दिलाए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जब उलमा यही काम कर रहे हैं, शादी ब्याह से लेकर के खाने पीने से लेकर के हर चीज में आज हमको सोचने की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। हर आदमी पहले अपने घर का जिम्मेदार है, हर बाप अपने बेटे का जिम्मेदार है। कहते हैं मौलवी साहब पढ़ता नहीं है, कैसे पढ़ेगा? मदरसे से आता है,
6 घंटा दुकान पर, 3 घंटा 6 घंटा मदरसे में रहता है। कभी कोई बाप अपने बेटे को लेकर के बैठा है, बेटा आज क्या पढ़े हो, और अगर 5 मिनट बैठ गया तो गाली देकर मारना शुरू करेगा। अपने लड़के की जरा सी तकलीफ पर शरारत बर्दाश्त नहीं, और मौलवी साहब अगर डाल दे तो डंडा लेके जाता है। ऐसे नहीं यहाँ पर खैराबाद के लोग अपने बेटे को अगर 4 मिनट सवाल कर देगा उसका लड़का अपने पास से, तो अपनी मादरी जबान में कहेगा फुर्सत नहीं है, जाके फराज कर दे, दिमाग खाए पियो, जो कुछ न डांट दे। बेटा उसका जलाल इतना, और मौलवी साहब के हवाले करके गया है, मुफ्त में तालीम देता, मुफ्त में, 1 पैसा नहीं देता है बेटे पर। मदरसे के लोग ज़कात की रकम रमजान में वसूल करके वो देते हैं, और वो जिसमें से तनख्वाह दी जाती है, और अगर कहते कि 200 रुपया फीस हो, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, शुरू हो जाए स्कूल में देने के लिए बहुत, यानी जिसमें सिर्फ उसकी दुनिया बनाई जा रही है, उसके लिए तो पहले सिलाएगा, टिफिन बनाएगा, सुबह उसके नाक साफ पोछेगा, तेल लगाएगा, और जाकर छोड़ आएगा। और जिसमें उसका ईमान बनना है, कुरान जो मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं उनको झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, मेरे बाबू को मारे क्यों, 5 मिनट दे करके जलाल में आ जाए, और बाप अव्वल पकड़ा जाए, हर बाप पकड़ा जाएगा जिसने अपने बेटे को वक्त नहीं दिया, हर माँ पकड़ी जाएगी जिसने अपने बेटे को वक्त नहीं दिया। उलमा इसी को याद दिला है, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तो आप सोचिए कि हम आपको तकरीर दिलाने के लिए नहीं है, ये जलसे इसलिए नहीं है कि लच्छेदार तकरीरें करें, अरे हदीस के खिलाफ, बरेली के खिलाफ, फला के खिलाफ, ये जलसा नहीं है। वो वहाँ बड़ा शानदार था, 2 बजे तक खूब धुआंधार बोले, बड़ा मजा आया, 50,000 लेके चले गए, वाह 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 वाह, ये जलसा नहीं है। ये जलसा है हर मुसलमान, हर बाप सोचे कि हमारे घर में जो खराबियां पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मौलवी साहब नहीं है, समझ लीजिए। जो हम याद दिलाने के लिए उलमा को ज़हमत दिए हैं, जमीयत उलमा का यही मिशन है कि हर बाप को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाओ, शादी से लेकर के मरने तक हर बाप अपने नाबालिग औलाद का सरपरस्त है, निगरान है, अल्लाह ने छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जब तक रसूल ने फरमाया मसऊल अन रअयतिही, अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। सबक पढ़ाओ अपने बच्चे को, मांगे हाँ मस्जिद में ले जाने की एक आदत है, मैंने देखा है, सब देखे हैं। जब 2.5 साल का 1.5 साल का रहता है तो गोद में लेके जाके किनारे बैठा देंगे, और इधर नमाज हो जब पे शुरू। जब 7 साल का होता तो लड़का गाय, बाप को फिक्र नहीं, वो यह दिखाता है कि बच्चे से गरीब मोहब्बत है कि मैं मस्जिद में ले आता हूँ, कोने पर बैठा देता हूँ। 3 साल 2.5 साल के बच्चों को ले जाते हुए मैंने देखा है, गोदी में ले जाएंगे, मकसद क्या होता है, इस्लाम कुछ नहीं, उसको दिखाना कि मैं बड़ी तरबियत कर रहा हूं, यकीनन कर रहा है वो तरबियत, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है कि 7 साल का जब हो जाए तब उसकी तरबियत शुरू करो, नमाज वाली, उससे पहले नहीं। और ले जा रहा है जब मस्जिद में, इसमें भी आते हैं, उस मस्जिद में आते हैं, जिस मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी है कोई भी एक बार जरूर रहता है, उसमें रहता नहीं रहता है, अरे रहता है ना भाई, अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूं, घर में साफ साफ बात सुनो भाई, और लच्छेदार तकलीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है क्यों 2.5 साल तक, जब उसको मस्जिद में ले जाने का टाइम आता है तो वो भागा हुआ है कहीं, और इसका बाप जो है अब वो मस्जिद में उससे छोटे वाले को गोदी में लेके आता है, वो गोदी में लेके आता नहीं, उसकी अम्मा खाना पका दे, इसके हवाले कर देती है, ये सब होता है। ये सब सोचिए आप लोग, बहुत
बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी बातें नहीं होनी है। साहब ये सोचिए कि हर बात जब है तो जब जिम्मेदार अल्लाह मियां ने बनाया है अपने बेटे का, तो मदरसे से तो तनहा नहीं सुधरेगा, ये तो तय कर लीजिए। हाँ, कब सुधरेगा? मदरसे की तालीम और आपकी पूरी तवज्जो और उसका वक्त कुछ साथ दीजिए, कुछ खेलने का मौका दीजिए, कुछ टाइम दीजिए। उसके बाद उस लड़के के अंदर एक शौक धीरे धीरे पैदा होगा। और हर बच्चे की तरबियत के लिए मारना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। और मैंने 90% बाप को देखा है कि अगर अपने अब्बा से कुछ पूछ देता है 2 मरतबा 3 मरतबा तो जरूर झुझला जाता है। और अगर उसी बच्चे को किसी दूसरे ने डांट दिया लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कितना बड़ा मुनाफिक बाप है जो चाहे गाली दे दे अपने बेटे को, गाली सिखाएगा, बेटा गाली देते हो, जब गाली देगा तो वो हंसेगा, और जब वही बड़ा होकर उसको गाली देगा तो होटल में बीड़ी पी के चाय पी के कहता बड़ा बुरा, बड़ा परेशान भी है, सिखाए तो थे। ये बात है जो कि मुआशरे की है, और इस्लामी मुआशरा जो हमारा उन्वान है, तो जो मुआशरे में बातें पाई जा रही है मैंने वही कही, यही पाई जा रही है, इससे कोई हक तो है नहीं। तो मैं कराम यही बात बताएंगे आप लोगों को। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको आम जलसों की तरह सुनने वाला ना बनाए कि आज तो जलसा है, बड़ा मजा आएगा, मजा वाला जलसा भाई कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। वो साल भर में होता है, बड़े पैमाने पर बड़े से मुकर्रिर बुलाए जाते हैं, नौजवान उठते हैं, इनके घर चंदा, उनके घर चंदा, यहाँ चंदा, वहाँ चंदा, 1 लाख 1.5 लाख बुला मंगाते हैं और 50,000 का स्टेज सजाते हैं और कौन सा बैनर लगाते हैं और लोग इश्तिहार छपवाते हैं। और मुकर्रिर आते हैं 20,000 पर, एक कारी साहब आते हैं 20,000 पर, एक शायरी इस्लाम आता है 15,000 पर। वाह 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 वाह, 2 बजे तक जलसा चला, ये अपने घर लोग के घर कितना खर्चा होगा? 2 लाख। बड़ा शानदार लगेगा, मजमा बहुत नमा मस्जिदिया में लोग हैं जो जब सभा कराते वो भी नहीं चाहते। हैरत की बात है, उसको हम कहते हैं जलसा। और जलसा ये है 10 बजे शुरू हो जाए, 11 बजे तक जलसा, घर घर जाइए, गौर कीजिए कि यार मोदी साहब बात तो कह रहे थे, कहीं अपनी तरफ से तो कोई बात मैंने कही नहीं है, एक लफ्ज भी अपनी तरफ से मैंने नहीं कहा है। मस्जिद में यह बताना चाहता हूं कि यही है ये मुआशरे में हमारे। साइकिल चला चला कि इब्राहिमपुर से भीगा से आके, अब हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि मजमा कितना था। और इतना उछलते हैं क्यों? 50,000 मजमा था, बोले आप धुआंधार बोले, समझे नहीं? और उसके बाद सुबह तक सब पसड़े रहे, ये मसला है। तो आइए ये बातें शताब्दी मुद्दे के तौर पर मैं चूंकि